in this, what we will do in the positive degree, we will change the y. The word in which y is coming will change that, and we will add I to that. Okay. So D will be, we will change Y letter. Okay. Y we will change into I. Okay. And what we will do? We have to add ER to. Okay. And this will be done to the positive degree, and then we will change them into comparative and superlative. Okay. Now see the example. Suppose I have written, this is positive, this is comparative, this is superlative, right? Okay, so now what we are doing? First example I have written busy, right? So Y is here, and what I have to do? I have to change the Y into I, and what I will add to it? ER. So my word will become BIR. I have changed from Y to I have changed R. From Y I have changed to I. Okay, and then I have add ER to it. So it has become busy to busier and busiest. Last में मैंने ऐड कर दिया EST. Okay, the word I will write here ER and EST. So here I have add EST, here I have add ER, and the word I have changed. Okay, in the place of Y, I have written I over here. Right? Got everybody understood? Okay, now I will give one more example. Suppose dirty. ठीक है? हो गया? Dirty. Y फिर से, it is again Y here. Again I will change this Y into I, and I will add ER to it. Same over here I will do DIR TIEST. I will add here EST. Again it will change dirty, dirtier, dirtiest. Okay. Clear these examples? On these basis only we'll do the exercise at the back, and you will give me the answers for that. Okay. Ma'am will not tell you. First you will tell me. You will explain to ma'am. Okay. You will tell me what will be the answers. Right? Okay. Now, next is come with the E example. That is example number 5. Now, in the example number E, what you have to do, you will add ER and EST to the positive degree when it ends with Y preceded by the vowel. Right? Like I will write a word for you, then I will change it, okay, to the comparative and the superlative degree. Okay. So in this I will add ER and EST. This is will be your comparative. Sorry. Positive. Positive. Comparative and superlative. Okay. So what I am doing? I am adding
ER and EST to this. Okay, like one is gray. Okay, in comparative it will become grayer. Okay, and in your superlative it will become grayest. ESD, ER, and this is the is given to you. Okay. Now comes the F example. In that you will add more and most before the positive degree. पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको क्या लिखना है? यू कैन ऐड मोर और मोस्ट. ठीक है, और मोर एंड मोस्ट यू विल ऐड टू when you will change it to comparative and superlative degree, right? So here comes your positive, comparative and superlative. Okay, so I have written the word first is active. Okay, so what I have to do, I have to write here more. That is more active in the comparative and most active. सबसे ज्यादा तो most active. Okay. ये हो गया आपका. ठीक है. Second, beautiful. If I have given beautiful, what I will write? More beautiful. Okay. And most beautiful. ठीक है. सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? कंपैरेटिव में मोर ऐड करा. ठीक है, और ऊपर में मोस्ट. So what two words I have added? More and most. Okay. So I have what I have added more and most to the positive degree. Positive degree थी मेरी ये. Active word था, beautiful word था, and I have added comparative में जब मैंने उसमें ऐड किया, उसको चेंज किया, तो मैंने ऐड किया more and superlative में most. तो क्या बन गया वर्ड? More active and most active. Okay. Now there are some examples given, right, which are irregular comparative and superlative forms. Okay. So I will give you 2-3 examples of that. Okay. Right. So there are some examples given, right? We'll look 2-3 of them. Like for bad comparative, it's positive. Okay. So when bad we talk about bad, positive, then in comparative it is worse, and in your superlative it is worst. Okay, right? So they are irregular comparative and superlative forms. Okay, for the comparison when are talking about, right? Okay, and when I say, suppose one more example will take. Okay, that is good. Okay, so it will be better in comparative. Okay, and in superlative it will be best. Okay.
There are more examples which are given in your books. You can look to them and you can simply understand these both are which examples I have given you is similar examples are given in your books also. Okay. Now there are general rules for your, you can say, degree of adjectives. For the degree of adjectives, we have some which you have to follow, right? There is no specific type of, you can say, reason for that, but it is a that you have to follow because some of the adjectives, okay, there are some adjectives, okay, which such as your prior number, then you have your senior, okay, superior, okay, inferior, okay. So when we talk about these words, okay, so what they do, they take to in the place of then. जब भी इन वर्ड्स का यूज होगा तो टू से यूज होगा, then नहीं आएगा, then will not come, to will come. Okay. So when we are using these words, junior, superior, inferior, private, so on when we are using these words, we'll use these words with to instead of then. Okay. So this is the rule you can say for the degree of adjectives. Okay. Have you all clear now? Okay. So now what you have to do, you have to okay, first I will explain you one of them with the example which I have given you over here. See, they are senior to me in office. The word is there, senior. What I have used over here? To. Okay. So when the word is senior, you will use the word to over here. You will not use the word there. Okay. Right. And one more thing which is being explained over here, which is being which you should know is double comparatives and superlatives should not be used. Okay. I will give you one example. Like I will write Mohan is more taller okay than okay. Okay. So what I have used over here, more. Okay. Second, I have written Mohan
is taller than Mohit. Okay. So double I have to do. I will not use two twice the comparative and superlative. More and taller will not come together. Okay. So comparative, if you will see your superlative, more is there and taller is also there. This will not do. Okay. Comparative superlative will not come twice. So what will be the correct? Mohan is taller than Mohit. Okay. There is no more over here in sentence number 2. Okay. So this will be your wrong sentence because they have used twice, double time. Here it is this sentence is your correct because one time I have used the word taller. I have not put more, much, anything. Right? So Mohan is taller than Mohit. That's it. Okay. Clear to everybody? Okay. So now what you have to do? You have to try to do or try, you need to try to solve the exercise which is given on your page number 65. Try to solve this, okay? And we'll discuss in our next class, okay? These all the exercises given on the page number 65, okay? Okay. Thank you all of you.
Yes, good morning students, how are you? Good morning. Good morning Ayush, Sejal, Navya, Ayushi, Lipika, Gumesh, Prakhar, Rajiv, Rajvi, Apurva. Okay, very good morning all of you. Nakul, I am fine. आवाज आ रही है क्लियर? Yes, Kushal, good morning. Yes, come on the topic. Which chapter is running? Chapter number 11. Okay, take out chapter number 11, page number 79. Okay. Karthik, good morning. Take out page number 79. यस बच्चों, हमने इसमें डिस्कस किया रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज। मैं रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा, जो हमने पढ़ाया था उसको एक बार मैं बता देता हूँ। ओके, यस, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज। आपको पता है कि जो एंशिएंट टाइम में जो अर्ली मैन थे, तो उस समय वो केवल ओरली ही अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते थे। स्टार्टिंग में उनके पास वर्ड्स भी नहीं थे, तो कुछ सिंबल्स जैसे एनिमल्स रहते हैं उस तरह से ही वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज है वो शेयर कर पाते थे। ओके, देवांश, यस। बट आफ्टर दिस टाइम, उस समय के काफी टाइम बाद में फिर उन्होंने कुछ वर्ड्स जनरेट किए या सिंबल्स जनरेट किए। उसके बाद में वो सिंबल्स से काउंटिंग वगैरह करना सीख गए, या जो भी वो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे भाई वो सिंबल्स या पिक्चर से दिया करते थे, है ना। अपनी जो केव्स हैं उनके ऊपर वो कुछ आर्ट करते थे। मेन जो एनिमल्स की फोटो उनमें ज्यादा रहती थी। ओके, उसके बाद में ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और फिर बाद में स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ। ओके, जो स्क्रिप्ट थी वो सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुई बच्चों, बताइए। स्क्रिप्ट सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई? कंट्री वेयर द स्क्रिप्ट डेवलप्ड। उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर स्क्रिप्ट सबसे पहले डेवलप हुई। गिव मी आंसर। नहीं पता आपको? आपने लर्न ही नहीं किया, रीड नहीं किया। होते हैं स्क्रिप्ट सबसे पहले डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया के अंदर। ओके, कहाँ पर? मेसोपोटामिया के अंदर। चाइना में नहीं हुई थी, अनीशना था। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, जो स्क्रिप्ट है वो सबसे, स्क्रिप्ट जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले हुई थी सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। प्रेजेंट में इसको इराक कहते हैं। ओके, वहां पर स्क्रिप्ट सबसे पहले डेवलप हुई। ओके, लिख लीजिए। प्रेजेंट में इराक कहते हैं, उस समय इसको मेसोपोटामिया कहते थे। ओके, सुमेर के अंदर मेसोपोटामिया। यस, और वो क्या करते थे, जो किले हैं उसको ड्राई करते थे, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स प्रिंट करते थे और वो रिकॉर्ड के लिए अपने पास में रख लेते। वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था। नेक्स्ट हमने इसमें सिस्टम, जो अल्फाबेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, तो प्रेजेंट में काफी अल्फाबेट सिस्टम है, बट जो मेनली यूज होती है वो रोमन अल्फाबेट यूज होती है, जिसमें 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स है इसमें? हाउ मेनी लेटर्स इन रोमन अल्फाबेट सिस्टम? तो इसमें है 26 लेटर्स है। अपन जो ABCD पढ़ते हैं वो सब रोमन अल्फाबेट्स है। ओके, तो प्रेजेंट में वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये ही यूज होती है। इसके अलावा लगभग 50 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं जो कि वर्ल्ड में यूज होते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल में केवल रोमन अल्फाबेट ही ज्यादा यूज की जाती है। ओके, ये भी हमने क्लियर कर लिया था। जो हिंदी है, इनकी स्क्रिप्ट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे अपने जो हिंदी
पढ़ते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, बताइए उसका नाम। स्क्रिप्ट कौन सी, अपनी जो हिंदी है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? हिंदी में बोलते हैं इसे लिपि। आप हिंदी में पढ़ते होंगे, व्याकरण में पढ़ते होंगे कि हिंदी की जो है लिपि वो कौन सी है। फोटो क्लियर नहीं दिख रहा, फोटो में कुछ है ही नहीं, फोटो नहीं देखनी आप तो बुक में देखिए। ओके, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखी। ओके, तो उसमें कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। नेक्स्ट है अपने इसमें राइटिंग नंबर। ओके, राइटिंग नंबर में आप जानते हैं जो मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये सभी नंबर्स होते हैं। ओके, इसमें इजीली काउंटिंग हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हुआ उसमें 1 से लेकर 9 जो नंबर्स थे वो थे, लेकिन इंडिया ने जो इन्वेंट किया जीरो का भी, उससे पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसका काफी यूज हुआ और पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसको एक्सेप्ट किया गया। तो प्रेजेंट में हम 1 से लेकर मिलियन या 10 मिलियन कितनी भी हो, वो सब जीरो की हेल्प से हम उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? बिकॉज ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? फिर कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते, इसलिए मैंने रिकॉल किया। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेपर। ओके, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, आज हम न्यू टॉपिक करेंगे पेपर। अब देखिए जो पेपर हम यूज करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास भी कॉपी होगी। ओके, बुक होगी, तो उसमें काफी पेजेस हैं। तो ये पेजेस है कहाँ डेवलप हुए, किस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई, क्या एंशियंट टाइम में भी ये था, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा एंशियंट टाइम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, जब लैंग्वेज ही नहीं थी, वगैरह की कुछ फैसिलिटी नहीं थी। ओके, और स्क्रिप्ट नहीं थी, तो पेपर भी उस समय नहीं था। बट जब इनका इन्वेंट हुआ और वर्ड्स बनने लगे, तो फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए, देखिए जो ओरली डॉक्यूमेंट्स, ओरली जो भी चीज रहती थी इंफॉर्मेशन, वो परमानेंटली नहीं हो पाती थी, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी, इसीलिए रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी। ओके, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो बार्क वगैरह है, जो छाल रहती है उसे हम बार्क कहते हैं, तो उसको ड्राई करके, है ना, और पीस के या उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था। तो इस तरह से वो रिटन डॉक्यूमेंट्स बनता था। अब अकॉर्डिंग टू अपन चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो पेपर है वो सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ, वो चाइना के अंदर हुआ। ओके, कहाँ पर हुआ? चाइना के अंदर हुआ, लगभग 1900 ईयर्स बिफोर। तो वहां पर एक ट्री पाया जाता है पेपरस, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, PAPYRUS। ओके, तो एक पेपरिस नाम का एक ट्री पाया जाता है, तो उसकी स्टेम से कुछ प्रोसेस करके, ड्राई करके, उसको मिक्स करके और एक शीट जैसी बना ली जाती थी, और उसी के ऊपर कुछ रिटर्न में किया जाता था। ओके, तो इस तरह से फिर पेपर धीरे धीरे उसमें न्यू टेक्नोलॉजी ऐड होती गई और फिर बाद में पेपर बनने लगा। क्लियर है? बट उससे भी पहले ये तो एक सिस्टमेटिक रूप था कि जिसमें पेपर जो है वो बनने लगा, वो चाइना में बनने लगे। बट उससे पहले इजिप्ट के अंदर, ओके, इजिप्ट के अंदर ये प्रोसेस काफी पहले शुरू हो गया था। बट सिस्टमेटिक रूप से जो था वो सिस्टमेटिक रूप से कहां पर हुआ? सिस्टमेटिक रूप से ये चाइना के अंदर। ओके, आज बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अपन बुक में ही करेंगे। नव्या प्रजापति। ओके, yes, about 4000 years ago the ancient Egyptians used the stem of a plant, लगभग 4000 years before। नव्या प्रजापति, आयुष, बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिखाई, लाइट तो यहाँ पर पूरी है।
अब दिखाई दिया बच्चा? ओके, बोर्ड इज क्लियर. Yes. About 4,000 years ago, the ancient Egyptians used the stem of a plant called papyrus to make paper. लगभग 4,000 years before इजिप्टियंस क्या करते थे? जो प्लांट रहते हैं उसका जो स्टेम रहता है, यानी कि आप ये मान सकते हैं जो तना रहता है. ओके, तो called papyrus. तो papyrus नाम का प्लांट रहता था, तो उससे वो पेपर बनाते थे. The name paper is derived from papyrus. तो papyrus जो ट्री था उसी से पेपर वर्ड बना. ओके, जो पेपरिस से बनता था इसलिए इसी से पेपर वर्ड को लिया गया है. ओके, और हम इसको पेपर बोलते हैं. ट्रू पेपर एज वेल नो इट टुडे वाज फर्स्ट मेड बाय द चाइनीज अबाउट 1900 इयर्स अगो. लेकिन प्रेजेंट में जो हम पेपर यूज करते हैं तो एक जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, वो चाइना के अंदर डेवलप हुआ था लगभग 1900 इयर्स बिफोर. इट वाज प्रोबेबली मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज. और ये लगभग जो स्टेम रहता है तो उसकी जो बार्क रहती है जिसे हम छाल कहते हैं उससे बनाया गया था. द बार्क वाज मेड इनटू पल्प एंड देन स्प्रेड आउट इन थिन शीट. तो जो बार्क होती है उसको पीसा जाता है. ओके, पीस के एक पल्प लिक्विड जैसा बना लिया जाता है और उसको एक शीट पे बिछा दिया जाता है. जब वो ड्राई हो जाता है तो पेपर के रूप में यूज किया जाता है. टुडे वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक पेपर. प्रेजेंट में भी वुड पल्प ही यूज होता है. ओके, तो जब भी पेपर बनता है तो वुड पल्प उसमें यूज होता है. पेपर वाज इन्वेंटेड बिफोर प्रिंटिंग, बट जो प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप हुई थी उससे पहले ही पेपर बनना शुरू हो गया था. क्योंकि प्रिंटिंग में तो प्रिंट होता था, बट जो रिटर्न वर्क है वो तो उससे पहले होता था. उसमें हैंड रिटर्न वर्क होता था. ओके, हाथ से ही बुक्स वगैरह लिखी जाती थी. पेपर वाज इन्वेंटेड बिफोर प्रिंटिंग. अर्लियर बुक्स हैड टू रिटन बाय हैंड ऑन पेपर. तो जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, बुक्स लिखी जाती थी, इंफॉर्मेशन कहीं पर सेंड की जाती थी, तो वो हाथ से ही लिखकर की जाती थी. ओके, दिस वाज स्लो एंड लेबरियस. लेकिन अब आप देखिए कोई बुक है और अपने को उसकी 10 कॉपी चाहिए, अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाता है. ओके, तो उस समय एंशिएंट टाइम के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उस समय रिटर्न वर्क किया जाता था और वो काफी लेबरियस था. ओके, लेबरियस का मतलब क्या है? काफी हार्ड था, उसमें काफी टाइम लगता था. इसीलिए यही एक रीजन था कि बुक्स थी वो काफी रेयर थी, काफी कम थी बुक्स. उस समय ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ज्यादा वो लिखी नहीं जा सकती थी. इसलिए बुक्स तो काफी कम लोगों के पास अवेलेबल रहती थी. ओके, जो रॉयल फैमिलीज है, किंग है या उनसे रिलेटेड जो लोग रहते हैं केवल उन्हीं के पास बुक्स रहती थी. बाकी कॉमन लोगों के पास में वो नहीं जा पाती थी. ओके, बुक्स हैड टू बी रिटन बाय हैंड ऑन पेपर. दिस वाज स्लो एंड लेबरियस. स्लो था वो प्रोसेस, काफी टाइम लगता था. लेबरियस थी, काफी टाइम उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी. बुक्स वर देयरफॉर वेरी रेयर. और उस समय बुक्स काफी रेयर थी, बहुत कम लोगों के पास थी या बहुत कम वो बनती थी. दे वर ओनली अवेलेबल टू ए फ्यू पीपल. केवल कुछ लोगों के पास में ही वो रहती थी. ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक पेपर का? ओके, जो भी था इसमें टॉपिक वो हमने डिस्कस कर लिया. तो हमने पढ़ा कि जो पेपर है सिस्टमेटिक रूप से चाइना के अंदर डेवलप हुआ, बट एक बार स्टेम के अंदर वो जो लिखा जाता था वो मेसोपोटामिया या वो इजिप्ट के अंदर स्टार्ट हो गया था. बट सिस्टमेटिक रूप से जो पेपर है वो इन्वेंट किस चाइना में किया. नेक्स्ट आता है आपके प्रिंटिंग. प्रिंटिंग में क्या होता है? जो जैसे अपने न्यूज़पेपर है, बुक से ये प्रिंट होकर आती है, ये प्रिंटिंग कहलाती है. तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका इन्वेंट सबसे पहले किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था. और किया था 1450 के अंदर. ओके, उससे जो वर्क है वो काफी इजी हो गया.
कम टाइम में, लेस टाइम में मोर बुक्स प्रिंट होने लगी और ज्यादा लोगों के पास वो पहुंचने लगी। ओके, उससे पहले प्रिंटिंग का जो वर्क था वो डिफरेंट मेथड से होता था। ओके, देखते हैं कौन सा मेथड था वो। प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड इन चाइना। अंडरलाइन कीजिए इसमें, प्रिंटिंग कहां पर डेवलप हुई? चाइना के अंदर। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले जो प्रिंटिंग थी वो चाइना में डेवलप हुई। द चाइनीज कट डिजाइन ऑन फ्लैट ब्लॉक्स ऑफ वुड। अब वो क्या करते थे, एक वुड रहती थी, लकड़ी रहती है, ब्लॉक रहता था, उसके ऊपर जो भी वर्ड्स लिखे जाते थे वो उस तरह से वर्ड्स को उसके ऊपर काट लिया करते थे। ओके, इंक वाज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, और फिर उसमें इंक डाल देते थे। अब इंक डालने के बाद में जहां भी उसको प्रिंट करना था उन वर्ड्स को वहां उसको प्रेस करते थे, उससे वो वर्ड वहां पर प्रिंट हो जाता था। जैसा आपने घर पे या कहीं पर देखा होगा, आपके सील लगती है, मोहर लगती है। ओके, तो उसको स्कूल में भी आपने देखा होगा, आपकी कॉपी पर चेकिंग होती है तो उसमें सील लगाई जाती है, स्कूल का नाम प्रिंट रहता है। ओके, रहता है, और उसको इंक में डालते हैं और वहां पर लगा देते हैं, तो उसमें वो नेम प्रिंट हो जाता है। सेम लगभग उसी तरह से था, और उसके अंदर इंक डाल के जहां भी उसे प्रिंट किया जाता है वहां उसे प्रेस करते थे और वो वहां पर कॉपी हो जाता, प्रिंट हो जाता। एंड इट वाज प्रेस्ड ऑन द पेपर, an impression of the design was made on paper. Okay, this method was used by the Chinese to print books. तो चाइनीज इस मेथड को यूज करते थे बुक्स वगैरह प्रिंट करने में। तो द ब्लॉक्स took a long time to make. Several copies of a book could be made from them. उसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन उससे जो है बुक वो काफी मतलब हैंड, अपन जो हाथ से लिखते थे उसमें हाथ से लिखते थे, उससे ज्यादा स्पीड से वर्क होने लग गया था और काफी बुक्स उससे बनने लग गई। इन द ईयर, तो ये स्टार्टिंग का था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उससे पहले का ये वर्क था। ओके, इन द ईयर 1450 जॉन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी। अंडरलाइन कीजिए, जॉन गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ओके, अंडरलाइन कीजिए, इसमें ये क्वेश्चन भी है पीछे। In the year 1450, John Gutenberg of Germany brought about a revolution in printing. He made several small metal modes. उन्होंने स्मॉल जो है मेटल मोड्स बनाए, यानी कुछ शीट जैसी उन्होंने चीज बनाई, ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। उसमें अल्फाबेट के जो थे वो वर्ड्स उसमें लेटर लिखे हुए थे। दे वर कॉल्ड टाइप्स, और उनको क्या कहा गया? टाइप्स का। दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म वर्ड, और ये जो लेटर थे उनको वर्ड के रूप में अरेंज किया गया है। जैसे इमेजिन कीजिए, उनको चाइना लिखना था तो सी, फिर एच, आई एंड ए, तो ये डिफरेंट लेटर्स को उसमें अरेंज किया गया, वर्ड बन गया चाइना। ओके, इस तरह से जो भी उनको प्रिंट करना था या जो भी लिखना था तो उन वर्ड्स को अरेंज करते थे उसके अंदर। दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म वर्ड्स, लाइन्स एंड पेजेस, और लाइन्स के रूप में वो हो जाते थे। दिस वाज कॉल्ड टाइप सेटिंग, तो इसे ही टाइप सेटिंग कहा जाता था। ओके, जो वर्ड्स थे उनको अरेंज किया जाता था वर्ड्स के रूप में, लेटर के रूप में, या सेंटेंस के रूप में, लाइन्स के रूप में, और फिर उनको प्रिंट कर दिया जाता। तो ये जो चीज थी उसे टाइप सेटिंग कहा जाता था, कि उनको एक प्रॉपर वे में एक सेंटेंस के रूप में, वर्ड्स के रूप में उनको सेट करना टाइप सेटिंग कहलाता। इंक वाज अप्लाइड टू द टाइप सेट पेजेस, और उसमें इंक अप्लाई की जाती थी। एंड दे वर प्रेस्ड ऑन पेपर, और वो प्रेस कर दी जाती। प्रेस का मतलब उसको पेपर के ऊपर दबा दिया जाता था। ओके, प्रेस कर दिया जाता था, उससे वो जो लेटर है, वर्ड्स, सेंटेंस, वो उस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता। ओके, यहां तक आ रहा है आपको समझ में? ओके, once a book was printed, the individual types were taken apart and used to print another book. एक बुक बन जाती थी, फिर दूसरी बुक भी इस तरह से बन जाती थी। Putting together the type to make a page of a book was much faster and easier than making a block of the pages. इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि पहले जो ब्लॉक बना, स्टार्टिंग में क्या था, ब्लॉक बना के किया जाता, बट उसमें वर्क काफी ज्यादा करना पड़ता था। ओके, और उसके
उसके बाद में ही कोई चीज प्रिंट हो पाती थी और उसमें टाइम ज्यादा लगता था। जब ये इस तरह की सिस्टम हो गया, टाइप सेटिंग हो गई, तो उससे जो वर्क था वो कुछ फास्ट हो गया। ओके, और मैनी बुक्स हैं, ये इस तरह की चीजें प्रिंट होने लग गई, तो काम क्या हो गया, इजी हो गया। ओके, putting together the types to make a page of a book was much faster and easier than making a block of the page. Books could now be printed much faster. अब बुक्स से वो ज्यादा फास्टली प्रिंट होने लगी एंड इन लार्ज नंबर्स, और बहुत ज्यादा संख्या में होने लगी। उससे पहले कम लोगों के पास वो पहुंच पाती थी, अब ज्यादा लोगों के पास पहुंचने लगी। दे बिकम चीपर, इसके अलावा ये चीपर भी होती थी, यानी कि सस्ती होती थी, बिकॉज इसमें जो लेबियस वर्क था वो कम था। ओके, स्टार्टिंग में क्या था, हाथ से बुक्स लिखी जाती थी, उसमें काफी मेहनत होती थी, कम लोगों तक जाती थी, काफी एक्सपेंसिव होती थी। उसके बाद में ब्लॉग से भी होने लगा, बट उसका काम स्लो था। ओके, तो वो भी कम लोगों तक पहुंच पाती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ, जो वर्क है वो काफी फास्ट हो गया और जो बुक्स है वो काफी अमाउंट में वो प्रिंट होने लगी और ये काफी सस्ती भी होती थी। ओके, क्योंकि इसमें लेबियस जो था, लेबर का मतलब है जो परिश्रम था या जो भी था वो काफी कम लगता था। एंड मेनी मोर पीपल कुड रीड देम, और अब बुक्स हैं वो पीपल के पास पहुंचने के ज्यादा लोग उसे पढ़ने लगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कुछ पूछना है आपको इसमें? नकुल, अनीश, नव्य, उर्मेश? ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेली। तो ब्रेली ए स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स क्या हो गया, अंधे, यानी कि जो देख नहीं पाते। ओके, उनको हम कहते हैं ब्लाइंड। यस प्रियांशी, जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो फर्स्ट यूज्ड इन चाइना, सबसे पहले वो चाइना में ही की गई थी, लगभग 2000 ईयर्स बिफोर। ओके, अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते। ओके, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती थी, वो कुछ रीड नहीं कर पाते थे, क्या मैटर है, क्या इंफॉर्मेशन उनको पता नहीं लगता था, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती थी। तो उस समय एक लुइस ब्रेली थे, ओके, जो कि फ्रांस के थे। लुइस ब्रेली ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट को डेवलप किया। ओके, स्क्रिप्ट डेवलप की, उसमें क्या था, उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, वो किसी पेज के ऊपर क्या रहते हैं, डॉट के रूप में रहते हैं और कुछ उभरे हुए रहते हैं। ओके, कैसे रहते हैं, कुछ उभरे हुए रहते हैं। तो जो देख नहीं पाते, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो उन वर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, उस पेज के ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं और वो डॉट्स को उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है और वो डॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक स्क्रिप्ट डेवलप की गई, और किसने डेवलप की थी, लुइस ब्रेली ने। इसीलिए उन्हीं के नाम से इस स्क्रिप्ट को जाना जाता है ब्रेली स्क्रिप्ट। ओके, तो इससे उनको काफी हेल्प मिली, अब वो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते थे या पढ़ पाते थे। ओके, तो ये प्रिंटेड इन पैटर्न्स रहते थे, स्मॉल डॉट्स रहते थे, और इससे उनको पढ़ने में या उनकी बुक्स वगैरह जो रहती थी वो उनको पढ़ने में उनको इजी हो गया। ओके, यस, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ओके, अब देखते हैं बुक में, ब्रेली ए स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। वी रीड विद आवर आईज, हम अपने आंखों से देखकर पढ़ सकते हैं। बट हाउ वुड ए विजुअल चैलेंज, लेकिन जो लोग देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते होंगे, ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली। तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट रहती है, उससे ब्रेली कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो कैसे फील कर लेते होंगे, इमेजिन कीजिए आपके हाथ में कोई पेन दे दे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पेन है। ओके, तो इसी तरह उनको भी प्रैक्टिस करवाई जाती है और वो उन डॉट्स के ऊपर फिंगरप्रिंट करके उनको पता लग जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एक स्क्रिप्ट डेवलप की गई, उसे ब्रेली कहा गया। ओके, ब्रेली अलाउज ए पर्सन हु कैन नॉट सी टू रीड ए बुक, जो देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते उनके लिए, यूजिंग
हिज और हर फिंगर, तो अपने फिंगर्स को यूज करते हैं। ओके, द स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, अंडरलाइन कीजिए इन। तो जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो डेवलप्ड द ब्रेली स्क्रिप्ट, तो आंसर होगा लुइस ब्रेली। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इन ब्रेली द लेटर ऑफ ईच वर्ड आर प्रिंटेड इन पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट्स। तो ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या, जैसा आपकी बुक में भी दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, तो उसमें देखो आप डॉट्स हैं, डॉट्स लगे हुए हैं उसमें। ओके, और वो डॉट्स कुछ उभरे हुए हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक सेंटेंस के रूप में या वर्ड्स के रूप में ये वर्ड्स अरेंज होते हैं उसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेली द लेटर ऑफ ईच वर्ड आर प्रिंटेड इन पैटर्न्स ऑफ स्मॉल डॉट्स। These dots are raised from the surface of the paper so that the visually challenged can feel them with their fingers। तो उनके ऊपर क्या करते हैं, फिंगर लगाते हैं, तो उनको फील हो जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, और वो उसको क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं with the fingers। Braille is read by lightly running their fingers along these dots। और वो इजीली उनको फील करके और वो सेंटेंस को या जो भी लिखा हो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों ये ब्रेली स्क्रिप्ट का टॉपिक? इसमें कुछ पूछना है आपको? कुछ डाउट है इसमें? Okay, come on the next point. Yes, knowledge, literacy and progress. अब इसमें है with the coming of computers, printing has become much faster and better। जब कंप्यूटर आया तो उससे जो प्रिंटिंग वर्क है वो काफी फास्ट हो गया। ओके, हम जो भी चाहे उसे प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी निकाल सकते हैं उसकी। ओके, काफी कम समय के अंदर ये हमें अवेलेबल हो जाए। has become much faster and better। उसमें जो देखिए आप, जो चीज प्रिंट होती है, ओके, और जो हम कंप्यूटर से लिखते हैं, दोनों में भी काफी डिफरेंस होता है। तो ये काफी फास्ट एंड बेटर रहता है। मेटल टाइप्स आर नो लॉन्गर यूज, इंस्टेड स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक पेज मेकर एंड इन डिजाइन आर यूज टू अरेंज द टेक्स्ट एंड पिक्चर इन पेज। तो इसमें क्या है, इन पेज मेकर या डिजाइन, इन डिजाइन की वजह से क्या होता है, डिजाइन की वजह से ये इजीली हमें अरेंज होते हैं और हमें इजीली ये मिल जाते हैं। पिक्चर्स है ना, ये जो भी चीजें। टेक्स्ट है, टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, हम लिखते हैं, लेटर्स जो लिखते हैं वो टेक्स्ट कहलाते हैं। ओके, इफ ए कंट्री वांट टू मेक प्रोग्रेस, इट इज इम्पोर्टेंट दैट नॉलेज बी कम्युनिकेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर किसी भी देश को अपनी प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस मीन्स क्या है, अपना डेवलपमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, इट इज इम्पोर्टेंट, तो ये काफी जरूरी है, दैट नॉलेज भी कम्युनिकेट, जो नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी नॉलेज है उसको भी क्या करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों तक, बड़ी संख्या में लोगों तक। यू नो दैट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ मोस्ट पीपल इन कंट्री कैन रीड एंड राइट। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी देश के, कंट्री के जो मोस्टली पीपल क्या हो, पढ़े लिखे हो, लिटरेट हो, और वो इजीली रीड भी कर सकते हैं हो और राइट भी कर सकते हो, तभी किसी देश की प्रोग्रेस हो सकती है और कोई देश आगे बढ़ सकता है। ओके, बट देखिए, लिटरेसी इज देयरफॉर द की टू प्रोग्रेस। तो लिटरेसी मीन्स क्या है, शिक्षा। ओके, तो शिक्षित लोग जो रहते हैं वो ही देश का क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए जरूरी कि वहां के लोग क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट। बट इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो इससे अपनी जो देश है उसकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, उसमें काफी इफेक्ट पड़ता है।
अपना देश उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज यहाँ पर इलिटरेसी काफी ज्यादा है। तो अगर अपने देश को हमें आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस करनी है, तो हम सबको क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन से हमें क्या फायदा है। ओके, तभी कोई देश क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। ओके, इस तरह से अपना ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें एनी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। ओके, तो हम इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइजेस कर लें हम इसकी अभी, बिकॉज अभी टाइम बाकी है। ओके, कम ऑन द पेज नंबर 82। आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर द फॉलोइंग वर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें बताना है कि ये सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ था, उस कंट्री का नेम बताना। ओके, फर्स्ट है द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो ये सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ, गिव मी आंसर। कहाँ पर हुआ बच्चों, ये इंडिया में। ओके, वेरी गुड। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स डेवलप्ड इन इंडिया। ओके, सेकेंड, ए स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज। ये कहाँ पर डेवलप हुई, आंसर 2 दीजिए आप, उसमें आंसर नंबर भी लिखा दीजिए। कुछ बच्चे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फर्स्ट का आंसर देते हैं। जब मैं फिफ्थ का करवाऊंगा तब कुछ बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट का आंसर देंगे। यस, कुशाल ने कहा मेसोपोटामिया। आंसर नंबर भी लिखा कीजिए, कुछ बच्चे यहीं से देखते हैं आंसर। तो जैसे 2, तो 2, यस, सुमेरियंस, मेसोपोटामिया, बट आप मेसोपोटामिया लिखेंगे। ओके, दोनों सही है, बट मेसोपोटामिया इसमें आएगा। एंड थर्ड इज पेपर फ्रॉम पेपरिस। पेपरिस से पेपर कहाँ बना, थर्ड का आंसर बताना है आपको, इजिप्ट। ओके, स्टार्टिंग में इजिप्ट, इजिप्टियन नहीं होगा, इजिप्ट होगा। कंट्री का नेम लिखना आपको। एंड फोर्थ, ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पर डेवलप हुई, चाइना। नेक्स्ट है फिफ्थ, रीयूजेबल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का जर्मन। एंड सिक्स, ब्रेली स्क्रिप्ट कहाँ पर डेवलप हुई, बताइए, ब्रेली स्क्रिप्ट कहाँ पर हुई, फ्रांस। वेरी गुड। चलिए बच्चों, आपने नोट आउट। अनीश नाथावत, अनीश नाथावत ने क्या आंसर किया, फ्रांस। संदीप कह रहे हैं चैप्टर कौन सा, ये देखिए चैप्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। संदीप, चैप्टर 11।
MCQs. In ancient India, knowledge mostly passed on. ओके, इंडिया में जो है नॉलेज है मोस्टली कैसे पास होती है? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही मान के चलेंगे तो भी ओरली होगी। ओके, फर्स्ट का बी क्यों होगा बच्चों? फर्स्ट का बी नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे फर्स्ट का बी लिख रहे हैं। बाय ड्राइंग पिक्चर्स है या सी होना चाहिए फर्स्ट का। ओके, फर्स्ट का क्या होगा? सी, ओरली। नेक्स्ट इज हिंदी इज रिटर्न इन द, तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी में? इसमें है देवनागरी। पेपर was invented in China. Yes, printing using types was invented in Germany. Which of these script used for printing books? Braille script. For the visually challenged. Okay. डन कर लिया बच्चों आपने? कंप्लीट। सी बी बी डी सी। ओके, बाद में मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर को आप रीड करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में आप पहले वो डिस्कस करना। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।